جی ویئرز ویلکم بیک گڈ ہیلدی مارننگ. اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خطرناک ایشو پہ. خطرناک اس لیے کیونکہ جب ہو جاتا ہے تو بڑے ایشوز آ جاتے ہیں اور بہت پرابلمٹک ہو جاتی ہے لائف. تو ہم بات کرنے والے ہیں السرس پہ, ہر طرح کے السر پہ بیسکلی. اور آپ لوگ بھی یہاں کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دو بہت ہی سینئر ڈاکٹر اور بہت ہی ایکسپیرینس ڈاکٹر موجود ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہیں سیف سرجیکل کلینک میں ہوتے ہیں جنرل سرجن ہیں ڈاکٹر سیف احمد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہی از پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ ڈاکٹر طارق نواز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, پروٹوکول کے اکارڈنگ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم پوچھیں گے پول کا سوال اور اس کے بعد باتیں کریں گے گندی گندی یعنی السرس پہ. تو سب سے پہلے پول کا سوال کرتے ہیں. سب ایک بات ہے, ایک کہاوت ہے جو ہمیشہ سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو کیا واقعی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جائز ہے, ورنہ پھر جنیوا کنونشن نہیں بنتا کہ جی آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح, ٹرو. تو اسی طرح محبت میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے مطلب. تو پھر کہاوت تو ہے. ایسی بات کیوں کرتے ہیں سر, ایسے لوگ کیوں کہتے ہیں پھر, اور ایسے ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے؟ ایک سرٹن حد تک کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لامحدود وہ نہیں ہے اس کی کہ آپ جو چاہیں کر لیں. لیکن ایک کہاوت ہو گئی ہے کہ جی مطلب یہ کہ آپ کر گزرو والی بات ہے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے کہ بھائی کر گزرو اس کو, کر گزرو اس کو. لیکن چاہے کچھ بھی کر جاؤ. ہاں, لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقتاً یہ ہے کہ اسی لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر جنیوا کنونشن بنا کہ جی جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ کیسے سلوک کریں گے, جنگ میں آپ کیا کریں گے, اگر کوئی سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کو آپ نہیں مارتے. تو لمیٹیشن تو آ گئی نا. اسی طرح محبت میں بھی ایک سرٹن لمیٹیشن ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو گھر سے دروازہ توڑ کے اس کے گھر سے لے آئیں گے. کیا یہ جائز ہے محبت میں کہ اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے والدین رشتہ نہ دیں تو آپ اس کے گھر پہ حملہ کر کے اسے نکال لیں؟ آپ کہیں گے جی محبت میں تو یہ جائز ہے, لیکن کسی بھی شریف معاشرے میں کرتے تھے شاید, اب نہیں کرتے. کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. نہیں دی جا سکتی. تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل نہیں ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں, آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے. میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے. اب آپ نے یہ بات کہی, پھر یہ بات کہی کیوں جاتی ہے؟ اس بات کا اوریجن کیا, اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی؟ بات یہ کہ جب بہت عرصے تک جنگیں بھی ہوتی رہی اور بہت سے لوگ بہت سے غلط کام بھی کرتے رہے اسٹیٹ لیول پر, قومی سطح پر, ریاستی سطح پر, تو ان سب کی جسٹیفیکیشن کے لیے پھر اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. در حقیقت نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے. میں اس کی آپ کو ایگزامپل دوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے موقع پر ہیروشیما میں ایٹم بم گرا دیا گیا, لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے. آج بھی اس سے متاثر ہونے والے معذور جاپان میں موجود ہیں. اس طرح کی باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو یہ جو محاورہ کہہ لیں, اس کو میکسم کہہ لیں, یہ تو جہالت کی نشاندہی کرتا ہے, یہ شعور کی نشاندہی نہیں کرتا. ہر چیز کی ایک سیٹ رولز اینڈ لمیٹیشنز ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ تیزاب پھینکنے کے. وہ کون لوگ تیزاب پھینکتے ہیں؟ وہ وہی لوگ پھینکتے ہیں جن کو محبت کا دعویٰ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اگر ہمیں چونکہ نہیں ملی تو محبت میں یا ایکسٹریم نفرت میں یا کچھ بھی ایسا, کہتے ہیں پھر اب ہمارا جو جی چاہے گا ہم کریں گے. تو اسے جائز کہنا تو کسی جو چیز جائز ہے بس وہی جائز ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. ویورز یہاں پہ ابھی تک ہمیں یہی بات سب کی, آپ لوگوں کی کال سے بھی اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے بھی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ پریکٹیکل نہیں ہوتا. یہ صرف کہنے, کہانیوں میں سننے اور اس طرح کی باتیں, ایسے کچھ نہیں ہوتا اور ایسا پریکٹیکل ورلڈ میں ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی السر پہ. تو سب سے پہلے السر ڈیفائن کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر السر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, السر کے تو بہت ساری ڈیفینیشن ہے, لیکن ایک جو چونکہ عام ناظرین بھی سن رہے ہیں اس کو, تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیکل ٹرمنالوجی میں ویسے تو کہتے ہیں کہ بریچ آف لائننگ آف میکس ممبرین اور واٹ ایور, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے جسم پہ لباس پہنا ہوا ہے, کپڑا پہنا ہوا ہے, یہ ہمارے جسم کو کور کرتا ہے. اگر یہ کپڑا کہیں سے پھٹ جائے تو پھر اندر کا جسم ایکسپوز ہوگا. تو جو پھٹنا ہے یا کٹنا ہے وہ بیسیکلی السر ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اندر کی چیز میوکوزل لیئر ہے یا وہ پتلی والی ایپیتھیلر لیئر بھی؟
चाहे वो स्किन हो, वो भी इपिथेलियल लेयर मतलब है, कोई भी टॉप कवरिंग, कोई भी कवरिंग है, मुंह के अंदर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, आप बिल्कुल अंदर चले जाएं, मिसाल के तौर पर स्टमक है, आंत है, आंत के अंदर जो उसकी म्यूकस लाइनिंग है वो अगर ब्रीच होती है, ब्रेक हो जाती है, अल्सर की शक्ल में आती है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऊपर हो। जहाँ भी कुदरत ने कवरिंग मुहैया की है, हमारा पूरा मुंह है वो एक तरह से कवर्ड है, लेकिन अगर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ज़ख़म पड़ जाता है, वो ब्रेक होता है, जब भी वो ज़ख़म बनता है, जब भी वो वुंड बनता है, तो वो अल्सर है। तो अल्सर के लिए कि जो नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी है, प्रोटेक्टिव कॉन्टिन्यूटी जो है वो कहीं भी ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो वो अल्सर कहलाता है। ये है इसकी। ओके सर, अब बताइएगा कि हमारे अगर हम पूरे जीआईटी सिस्टम की बात करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम मूव गोइंग ऑल द वे टुवर्ड्स रेक्टम, यहाँ पे किस तरह के अल्सर्स हो सकते हैं? देखिए अल्सर्स हमारे पूरे जीआईटी में हो सकते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। माउथ में भी अल्सर्स होते हैं, जो सबसे उसकी कॉमन टाइप है वो एफ्थस अल्सर्स है। इसके अलावा जो हमारी खुराक की नाली है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, उसमें भी अल्सर्स हो सकते हैं। और जिसे अल्सर को, इस नाम को जिस वजह से आप समझ लेंगे शोहरत हासिल हुई, वो असल में है पेप्टिक अल्सर्स, कि जो मैदे में होते हैं और जो हमारी आंत का इब्तदाई हिस्सा है उसमें होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। वैसे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्सर्स कहीं भी हो सकते हैं, उसकी वजह कि जो अल्लाह ताला ने हमें हमारी जिस्म में जो प्रोटेक्टिव लेयर्स दी हैं, वो स्किन हो, एपिथेलियम हो, म्यूकोसा हो, जब वो रप्चर हो जाती है तो उसे अल्सर कहते हैं। सही। वो तो कहीं भी सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ तो उससे मुराद होती है मैदे का अल्सर, आंत के इब्तदाई हिस्से का अल्सर, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन भी हमारे यहाँ पर यही है। ठीक है, इससे पहले कि इस पे और बात करें, एक कॉल है जी हमारे पास, कॉल अटेंड करते हैं, फिर पे फर्दर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। आपका कॉल का सवाल बड़ा जबरदस्त है लेकिन वाकई अभी मेरी समझ में ये बात नहीं है, बिल्कुल कोई एग्री नहीं कर रहा है इस बात से, लेकिन ये इस बात ने जन्म के लिए, मतलब ये बात निकली कैसे, मुझे तो इस पे रिसर्च करनी है। मुझे भी ये नहीं पता। हाँ, तो ये मैं देखूंगा बहरहाल एनीवे, लेकिन ये बहरहाल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और लेकिन हाँ, जंग में जो आजकल हो रहा है वो तो वाकई हर चीज को जायज नाजायज बनाया जा रहा है, और जेनेवा कन्वेंशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, स्पेशल बड़े कंट्रीज हमारे, तो ये तो है गलत, क्योंकि इससे ब्रूटैलिटी पैदा होती है कि हर चीज को जायज करा दिया है। ट्रू दैट, यानी जब इंसान बहुत खुदगर्ज हो जाता है तो वो इस तरह की बात करता है। यू मीन टू से दैट? बिल्कुल, वो खुदगर्जी है ना, कि अपना मकसद हासिल करने के लिए हर एक को रोन पे चले जाओ, जो मर्जी चाहे कर लो। हाँ। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा किसी की शादी करनी जबरदस्ती वो नहीं करना चाह रही, आप दूसरी जाके उसको उठा के ले ये इट्स वेरी बैड आई थिंक। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अल्सर के हवाले से ना मुझे बाकी बहुत ये है आजकल, बहुत से लोगों को होता है अल्सर, और मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे हमारे खाने पीने की जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, जो हम केमिकल वाले खाने खा रहे हैं, मसाले वाले खाने खा रहे हैं और खाए चले जा रहे हैं, और उससे हमारी जो ये अल्सर में किस, मतलब क्या इसमें अल्सर बनने में क्या किरदार अदा कर रहा है, और अल्सर ये कहते हैं कि अल्सर फट जाता है, वो क्या चीज है जिससे ब्लीडिंग हो जाती है, इसके बारे में जरूर बताइए डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अल्सर फट जाता है, ठीक है जी, हम आपको बता, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, अल्सर फट जाता है, छाला भर जाता है। बेसिकली अल्सर तो नहीं फटता, अल्सर तो जब फटेगा जब ही बनेगा। अब अल्सर की फर्दर कॉम्प्लिकेशन जब होती हैं, क्योंकि अब मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में खून की जो नालियां हैं, शरियान है, आर्टरीज़ हैं या आर्ट्रियोल्स हैं, वो अपनी अपनी राहों से गुजर रही हैं। जब अल्सर होता है वो एक्सपोज हो जाती हैं। अब उनकी अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या वो इरोड हो गई। जब तक आपको जिस्म पे खरा, अगर आपने कुछ पहना हुआ है और आप गिर जाते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन आपके कपड़े से होती है, लेकिन अगर आपका जिस्म एक्सपोज है तो सबसे पहले वहाँ पे स्क्रैचेस और एब्रेजन आएंगी। तो इसी तरह अगर ऑलरेडी एक मिकस लाइनिंग, नॉर्मल हेल्दी लाइनिंग ब्रेक हो जाता है तो नीचे की चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। फर्दर जब उसमें इरोजन होगी, फर्दर उसमें जब रगड़ होगी, खुरचन होगी, तो वो खून की जो नालियाँ हैं वो भी खुल जाएंगी, तो वो फिर ब्लीडिंग की शक्ल में आपको सामने मिलेगा। सही, ओके। तो सर, एक तो उन्होंने ये कहा, ये पूछा था, और दूसरी उन्होंने एक और बात पूछी है कि क्या हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकली एक्सपोज या केमिकल मिले हुए खाने खा रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारी, वो कहते हैं ना, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के क्या क्या चीज़ें अब हम करती इसके हैं। कॉजेस पे आ जाते हैं। हाँ, अभी हम क्या क्या चीज़ें करती हैं, उसमें डाइट का भी रोल है, स्मोकिंग का एक रोल है,
स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ब्लेम करना कि स्ट्रेस से क्या होता है सर? स्ट्रेस तो हर इंसान को है, स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस फैक्टर फिर आपकी जो मैदे में जो एसिड सर्कुलेशन, एसिड प्रोडक्शन होती है, उसको वो करता है, हैम्पर करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ख़ास तौर पे जो फास्टिंग नाइट है, आपकी जो सिक्रेशन होती है गैस्ट्रिक जूस, तो वो स्ट्रेस फैक्टर में। अच्छा, ठीक है। मतलब हमारे स्टमक में जो एसिड निकलता है, जो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड किस्म का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो उसका रिलीज ज़्यादा होता है। उसका रिलीज ज़्यादा हो जाता है, तो मुख्तलिफ तो लेकिन ये कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि जी आप पिन पॉइंट करें कि सिर्फ ये चीज़ है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, या कोई पर्टिकुलर एक डाइट आप ये नहीं कि जी ये जो है रोटी खा ली तो इसकी वजह से हो गया। एक वक्त ये देखा गया था अलबत्ता कि जो राइस ईटिंग कंट्रीज़ थी उनके यहाँ ज़्यादा होता था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो पैटर्न भी मतलब ये कि कोई वो नहीं रहा। अच्छा, जहाँ पे रोटी लोग खाते हैं उनको भी होता है। हमारे यहाँ पे ये फैक्टर्स भी कहते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी कॉफ़ी, अचार, इस तरह की चीज़ें भी शामिल हैं अल्सर कॉज करने में। जी मैं इसकी वजाहत कर दूं, जब बीमारी के असबाब की हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स भी कहते हैं। एक चीज़ होती है कॉजेटिव फैक्टर्स। ठीक है। जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया ये हैं कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। कंट्रीब्यूटरी सेंस में कि जिसको अल्सर हो चुका हो उसमें हीलिंग को तो डिले कर सकते हैं, अल्सर से होने वाली तकालीफ में भी इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों से अल्सर पैदा होता है, बड़ी रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि अल्सर का जो सबसे बड़ा काज है वो इन्फेक्टिव है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माफ़ी चाहता हूँ, एक मैदे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कहा जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी। अब तहकीक से ये साबित हुआ कि सबसे बड़ा जो अल्सर का सबब है वो ये है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है अल्सर के सबब में, वो ये हमारी ये पेन किलर्स। हमारे यहाँ पेन किलर्स की वजह से अल्सर होने की वजह यह है कि लोग खुद ब खुद लेकर खाते रहते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर खाते हैं। अब छोटे छोटे पेन के लिए तो नहीं जाएंगे ना डॉक्टर साहब के पास अब, लेकिन उसमें छोटे, लेकिन काफ़ी तवील अरसे, हाँ, लेकिन देखिए उसमें भी एहतियात की ज़रूरत होती है कि तवील अरसे तक नहीं खाना, कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में लेनी है और किस वक्त लेनी है। ये तो इसके बहुत बड़े काजेज़ हैं। उसके अलावा फिर कुछ और भी कॉजेज़ हैं लेकिन वो रेयर हैं, क्योंकि अल्सर तो मैदे का आपको पैंक्रियाज की डिजीज़ में भी हो सकता है, सही, पैराथायराइड ग्लैंड की डिजीज़ में भी हो सकता है, लेकिन जो बड़े कॉजेज़ हैं वो हैं एच पाइलोरी, इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी, और दूसरे नंबर पे आ जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको एनसेड्स कहते हैं, जिनका हमारे यहाँ पर मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पेश आती है। गरम गरम खाना खाने से या गरम गरम चाय या कुछ चीज़ पीने से भी ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं? देखिए एक चीज़ उसमें भी चूँकि जलन तो महसूस होती है, बदहज़मी भी हो जाती है, एक बदहज़मी भी हो जाती है। देखिए एक चीज़ होती है मुख्तलिफ चीज़ों से, एक चीज़ होती है अल्सर। अल्सर एक पैथोलॉजिकल एंटिटी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ब्रीच होगा तो हम इसे अल्सर कहेंगे। उसके अलावा इन चीज़ों से जो तकलीफ होती हैं ये आमतौर पर गैस्ट्राइटिस की वजह से होती हैं, या फिर अल्सर की एक माइनर फॉर्म तो नहीं कहना चाहिए, अल्सर एक छोटी चीज़ है, इरोजन जिसको कहते हैं, जिस्म में जिसको कहते हैं खराश आ जाना, मैदे में उसको इरोजन्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अल्सर जो है वो एक क्लिनिकल एंटिटी है, वो पैथोलॉजिकल एंटिटी है, वो एक हकीकत है, और वो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उस वजह से होती है, और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में साबित ना हो जाए उसे अल्सर नहीं कहना चाहिए। एच पाइलोरी कहाँ से आता है सर? एच पाइलोरी मेनली तो वाटर बॉर्न डिजीज़ में आता है कि आप पानी कंज्यूम करते हैं, स्टमक में रहता नहीं है? स्टमक के नहीं, स्टमक में, लेकिन गया कहाँ से? गया कहाँ से? जब आप खाएंगी तो जब आएगा ना, फिर स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो है ये अपना घर कर लेता है और अंदर पेनिट्रेट कैसे करता है, और इतनी एसिडिक एनवायरनमेंट में जिंदा कैसे रहता है? जिंदा रहता है जब भी तो करता है ना, मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने मुदाफ़त के लिए कुछ करता है। लेकिन इवन देन एच पाइलोरी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को है, लेकिन ये कि हर एक को जो है वो पेप्टिक अल्सर नहीं होता, लेकिन ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर या आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से है होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको एच पाइलोरी है, हम टेस्ट नहीं कराते, लेकिन उन सर्टेन लेवल उनका होता है, और उसके बावजूद ज़रूरी नहीं है कि उनको पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाए। अच्छा, नहीं, हल्का फुल्का है एच पाइलोरी सबके अंदर होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अल्सर करा दें। ओके जी, इसी बात के साथ लेते हैं छोटे से ब्रेक, आप तो कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक।